سے پہلے کھانا پریس Hi, now I am good. Bam! A big shout out to Bam. Bam! A big shout out to Bam. Bam! A big shout out to Bam. Keep watching. No. You are watching BAM TV. जनाब, लंदन में हो रही है पाकिस्तान रेमिटेंस समिट और इस पाकिस्तान रेमिटेंस समिट में पाकिस्तान से गए हैं एहसन खान और महविश हयात. टेक अ लुक. मीडिया साथ कभी तो वो हेयर होते हैं, कभी तो वो देयर होते हैं और अब वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि लंदन में मौजूद हैं. मैं बात कर रहा हूँ एहसन खान और उनके साथ गई है उनकी डायन आई एम सॉरी महविश हयात. आइए नजर डालते हैं पाकिस्तान रेमिटेंस समिट 2025 जो लंदन में हो रही है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये समिट की जा रही है. इसकी कुछ ऑफिशियल ब्रीफिंग्स जो महविश हयात और एहसन खान ने स्टेज पे दी. Assalamu alaikum and welcome to the Pakistan Remittance Summit 2025 hosted in the financial capital of the world, London. It is an absolute honor, thank you. It's an absolute honor to host you today as we celebrate the story of connection, one that stretches from the bustling streets of Karachi to the villages of Khyber Pakhtunkhwa, from Mirpur to Manchester and from Lahore to London. This is the story of remittances, the undeniable lifeline of millions of Pakistani families, the strategic pillar of our national economy, and the living proof on unwavering love and trust that spans continents. Pakistan's GDP, making it a cornerstone of economic stability and a source of resilience even in times of challenge. Each commitment, a parent supporting a child, a son rebuilding a family home, a sister investing in a sibling's dream. This is not just money. It is trust. It is investment. It is connection. It is Pakistan's most powerful and human form of foreign exchange. But beyond the figures lies something far more powerful. It is an investment of hope fueled by the deepest sense of national pride. So ladies and gentlemen, we now move to one of the most important segments. It's truly our honor to invite a distinguished leader whose guidance and vision continue to shape Pakistan's financial and remittance landscape. Please join us in welcoming. What about finance today and... So you plan to invest at least, Mahwish? I am actually. It all depends on how much finance one has, basically. I would like somebody to help me. Help me invest. But thank you to our moderator and our distinguished panelists for a truly insightful discussion. Exactly, Ji. Your perspectives have added great value to this evening and have helped set the stage for the work ahead in strengthening cross-border payments and remittance flows. Thank you so much. We are grateful for your time, your expertise and your contributions. And now? Ji, now we've been waiting for this and finally वक्त आ गया है जनाब. We move to one of the most anticipated moments of the night,
which is the PRI Awards 2025. These awards recognize the outstanding contributions of institutions that have played a central role in facilitating home remittances to Pakistan. Their commitment, innovation, Bank Al Habib, Faisal Bank, HBL, Habib Metro, JS Bank, Mizan Bank, National Bank of Pakistan, UBL and Bank of Punjab, along with our global remittance partners, fintech innovators and international development agencies. Your collective efforts and partnership continue to support Pakistan's remittance growth and diaspora engagement. We thank you all for being part of this landmark summit, and we look forward to an inspiring and memorable evening ahead. So over the past year, Pakistan's overseas community has sent home over $38.3 billion in remittances. This immense commitment is the foundation of our gathering today. We gather not just to celebrate these impressive numbers, but to celebrate the transformational impact of every single dollar received through legal ways of remittances. It serves as the bedrock of change, helping pay for education, healthcare, homes. जनाब अब हम चलते हैं उन पर्सनल मोमेंट्स पे, उन सेल्फी मोमेंट्स पे जो कि एहसन खान महविश हयात के साथ फैंस ने ली लंदन में मौजूद पाकिस्तान रेमिटेंस समिट के अंदर. तो टेक अ लुक जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के मोमेंट्स हैं विद एहसन खान एंड महविश हयात. वे ढोला तेरी अखियां दी सोए वे ढोला चलो भाई अनस का कैमरा कौन सा ये डन महविश सॉरी यार अनस स्पेशल Yes, Anas के लिए. अनस के लिए तालियां. मैं इधर आता हूं. सबसे पहले खाना प्रेस मैंने अभी आपसे बात और की देखो थी, यार. चले गए. देखिए यार क्योंकि मुझे खुद भूख लगी हुई इसलिए मैं यहाँ पे हम आए ना. मैं आ गया हूँ. जब कैमरे बंद होंगे फिर कुछ खाऊंगा यार. डोंट वरी अबाउट इट. सफीना wants a picture. Hi, Sabina. Hi, I'm good. A picture Safina की मुझसे प्लीज मेरे वीडियो ले लो प्लीज. बंद है आप selfie भी ले लें. हाँ सेल्फी ले लेती. Okay, that's fine. Even better. Let me just go inside. Thank you so much. Give us some space, please. Give us some space, please. Space. आराम से दरवाजा ना खोलो. मीडिया साथ मीडिया अब मुझे तो आएंगे क्या बात है आप ना लाती भाई चल नहीं रही. अभी मार दो आप मार लियो हाँ आप कर. ये देखो हाथ में पकड़ा है साथ साथ हम खाना खा रहे हैं. हाँ. Nice to see you. Nice to see you. Thank you. Sorry, I need to go out. Yeah. क्या बात है यार. ये कौन है? उसने साइड पे करे ना ऐसे. भाई आपको
आइए चलते हैं और मुलाकात करते हैं इन सेलिब्रिटीज से, देखते हैं कि इनकी क्या ओपिनियन है अबाउट देयर एक्सपीरियंस एट पाकिस्तान रेमिटेंस समिट। और इसके अलावा जो इस वक्त हालात और इधर उधर चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं, उसके बारे में इनकी क्या ओपिनियन है। लंदन में तो है लेकिन फिर भी दिल है पाकिस्तानी और इनका दिल अभी भी है पाकिस्तान में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा, बच्चा जो फोत हुआ जी। आपका दिल भी दुखा होगा, उस पे मैसेज क्या देंगे जो ऑफ कोर्स नहीं जी, मैंने तो हमने सबसे पहले हमने एहतजाज इस सेंस में कि हमने उसके बारे में, बच्चे के बारे में आवाज़ उठाई। तमाम आर्टिस्ट आवाज़ उठा रहे हैं और कम्युनिटी का हर इंसान, कोई भी शख्स जो दर्द दिल रखता है वो उस बच्चे के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएगा। और आई थिंक इट्स टोटली नेग्लिजेंस एंड इट शुड बी टेकन सीरियसली। ये एक बच्चा वजह बना इस चीज़ को सीरियस लेने में, इससे पहले क्यों नहीं हुआ सब कुछ सीरियसली। तो आई फील कि बहुत से इश्यूज होते हैं जिन पे शायद उस तरह से ध्यान या नज़रसानी नहीं की जाती और इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बताइएगा कि जब अभी आप जब कंपेयरिंग कर रहे थे महवेश खयाल के साथ, तो सफीना कह रही थी कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं स्टेज के ऊपर, तो इनको फिल्म में इकट्ठे आना चाहिए। तो कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है? हम लोग अभी प्ले तो हमारा ख़त्म हुआ है 2 महीने पहले, आपने देखा डायन एक साथ हम कर रहे थे, तो फिल्म भी ज़रूर करेंगे और इनके साथ महवेश साथ तो हमारा काम चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान के सुपरस्टार एहसन खान यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बड़ी ही टची पाकिस्तान से मुतालिक बातें की, तो सोचा कि क्यों ना हम भी आपसे 1 on 1 जो है वो पूछें। आप पाकिस्तान के बारे में हमेशा बड़ा अच्छा बोलते हैं और बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, जबकि बहुत सारे हमारे फनकार जो हैं वो थोड़ा सा पतली गली से निकल कर अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि हमारा फनकार की कोई सरहद नहीं होती, आर्टिस्ट की कोई हद नहीं होती। लेकिन आपने आज बड़ी अच्छी बात की कि क्यों नहीं होती। पाकिस्तान जिसने हमें नाम दिया, पहचान दी, और उसके साथ अगर हम कोई भी मौका आए तो उसके लिए हम पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर बोलेंगे। पाकिस्तान की अफवाज के बारे में बड़ा अच्छा बोला आपने। नहीं, ऑफ कोर्स सफ़ीना, आप स्पेशली अपने मुल्क से बाहर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, और एक ऐसा मुल्क, कोई भी मुल्क हो, जहाँ भी आप रहें, जहाँ आपको इज़्ज़त मिले, जहाँ आपको काम मिले, जहाँ के लोग आपसे मोहब्बत करें, जहाँ का काम आपको सुपरस्टार या स्टार बनाए, या आप वहाँ पे अपना योर अर्निंग्स, योर लिविंग आपकी वहाँ चल रही है, तो नेचुरली एक एफिलिएशन भी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो आपका आर्ट है, आपकी जो कला है, आपकी सिंगिंग है, आप की अदाकारी है, आपके और बहुत से काम हैं, यकीनन वो ग्लोबल होते हैं, उसकी वाक़तन कोई सरहद नहीं होती। लेकिन जिस तरह से आप के साथ एक टैग जिस के साथ भी अटैच होता है उसके मुल्क का, उसको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए सोचना चाहिए कि मुझे एक सर्टन जगह से इज़्ज़त मिली है तो मैं उसका ख़याल ज़रूर रखूं, और जो भी अगर उस मुल्क पे कोई कोशिश भी करे उसको नीचा दिखाने की, तो नेचुरली एक तकलीफ तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऊपर मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रोपेगेंडा जारी होता है, उनको टारगेट करना। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया और पाकिस्तान का दुश्मन उनके नाम से खौफ खाता है। देखिए सफ़ीना, हिस्ट्री रही है, दुनिया में जितने भी लोग जब भी कभी कामयाब हुए, कहीं भी उनका नाम हुआ, तो लोगों ने जितना अप्रिशिएट किया, लेकिन उनकी टांगें खींचने वाले ज़्यादा लोग आपको नज़र आएंगे, और ये हमेशा रहा है। जो काम है वो दुनिया भर ने देखा है और हमने भी देखा, सबने अप्रिशिएट भी किया। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को उनकी जो रहनुमाई के साथ जो काम हुआ और उनकी अंडर जो सब कुछ काम हो रहा है, और जो हमारे यंग लोगों ने, नए बच्चों ने, जो बहुत मैं समझता हूँ कि देर ब्रिलियंट एंड उनका कोई मुकाबला नहीं, इतना टैलेंट है, दुनिया भर उस टैलेंट को अप्रिशिएट करती है। तो अब यू गाइज बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाई somebody in their normal senses would not appreciate अपनी फ़ौज या अपनी आर्मी को क्यों नहीं करेंगे, अपनी एयर फोर्स को क्यों अप्रिशिएट नहीं कोई करेगा? क्योंकि कोई इतना बड़ा जब एक सान्या हो जाए, एक आपके ऊपर अटैक हो जाए, तो नेचुरली जिस तरह से डिफेंड किया गया पाकिस्तान ने, जिस तरह से अपने ख़ुद को डिफेंड किया, तो हमें तो बहुत इसको फ़ख्र से बयान भी करना चाहिए और हमें बिल्कुल साथ भी देना चाहिए। मुझे तो कोई मैं समझता हूँ कि हाँ, ये एक बात अलग है कि आप अपनी राय को पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो हर इंसान का हक है। कोई लोग बहुत मीडिया पे आके बोलते हैं बहुत सी चीज़ें, कोई लोग नहीं बोलना चाहते, दैट्स देयर चॉइस, यू कांट पुश देम टू से थिंग्स। बट देन ऑफ कोर्स जो आप देख रहे हैं कुछ अच्छा हो रहा है, तो यार उसमें तो कोई
कोई दूसरी राय ही नहीं है. पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह से काम करी है, स्पेशली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हर जगह पर उनकी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी से बेहतरी की जा सके, लेकिन पंजाब के अंदर एक खातून मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो हर वक्त ऐसा काम कर रही हैं जो पहले आज तक पाकिस्तान में नहीं मुमकिन हो सका. तो मरियम नवाज शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें सफ़ीना, मैं पहले भी पर्सनली ये बात इसलिए कहना भी चाहता हूँ, करता हूँ हम तो, क्योंकि मैं हमेशा ये बात क्लियर करता हूँ कि एक पाकिस्तानी सिटीज़न और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से वहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ पे है, सब लोग हैं वहाँ पे. तो सबसे पहले तो हमें ऑन करना चाहिए अपनी अच्छाई और बुराई को, और हमें हमेशा सुधारना चाहिए हर चीज़ को. जब आपने मरियम साहिबा की बात की है, तो मैं अभी रिसेंटली उनके कुछ लॉन्चेस थे इलेक्ट्रो बसेस के, और मैं उन शोज़ को होस्ट कर रहा था. और मैं समझता हूँ कि जो इनिशिएटिव, फिर हम लोग देखें, हर चीज़ इंस्टेंटली तो नहीं होती, टाइम लगता है, और हमारे लोग दे वेरी क्विक टू जज पीपल. और इससे पहले भी ऐसे हुआ, उससे पहले भी ऐसे हुआ कि किसी को वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं दिया, जज कर लेते हैं लोग एक दूसरे को. बट ये वाक़तन बहुत कोशिश और बहुत काम कर रही हैं. एंड आई थिंक विद होल लाइक हार्ट एंड ऑनेस्टी, I've seen a lot of work is being done in Punjab, and I feel a lot of honesty. I just wish कि देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या आपको कोई चीज़ पसंद है या नहीं पसंद, वो मेरी भी 10 चीज़ें हो सकती हैं. शायद मैं वो पर्सनली किसी को बोल दूं, मैं पब्लिक में नहीं बोलूँगा. कुछ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक में बोल देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा किसी को तनकीद करते हुए भी उसका भी एक तरीका होना चाहिए. हमारे लोगों में चंद सालों में हमने देखा कि किसी को तनकीद क्या करनी है, आप तो जज कर देते हैं कि कौन दोज़ख में जाएगा और कौन जन्नत में जाएगा. हम तो यहाँ पे टिकट्स बांट रहे हैं लोगों को ना, दुनिया और आखिरत की, और अच्छे और बुरे का फ़ैसला कर रहे हैं. हर इंसान की डिफरेंट सोच और डिफरेंट अपब्रिंगिंग और डिफरेंट प्रोग्रेशन है ज़िंदगी का. आज मैं कुछ और सोच रहा हूँ, 5 साल बाद कुछ और सोचूंगा. सो आपको दूसरों को चांस देना चाहिए हमेशा. हैविंग सेड दैट, ये लंबी बात हो गई है. आई थिंक पंजाब में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. मैंने 2-3 चीज़ों में बाकायदा, इसलिए मैं देखें, जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं ना, अटैच होते हैं आप किसी के साथ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे डूइंग. आप किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की तारीफ़ तो नहीं कर रहे जो कि गलत हो, या आप हमेशा देखते हैं हमारी भी इज़्ज़त ऑन स्टेक होती है. सो मैं समझता हूँ कि वाक़तन काम हो रहा है. इससे पहले भी जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं, अगर वहाँ पे कुछ अच्छा काम हुआ तो हमने हमेशा अप्रिशिएट किया यार, और करना भी चाहिए. ऐसा हम सब अपनी बात करने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि मैं आज़ाद से आपके साथ बात कर रही हूँ. आप हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को क्या पैगाम देंगे? मैं बस ये पैगाम दूंगा कि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस सुपर टैलेंटेड लोग हैं. हम लोगों में इतना टैलेंट है माशाल्लाह कि अनबिलीवेबल है. जिस तरह से हमारे लोग बग़ैर किसी सपोर्ट के आगे निकल आते हैं दुनिया भर में, और उनका नाम दुनिया भर जानती है. और वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एक्टिंग के मीडियम में हो, सिंगिंग में हो, और हमारी फ़ौज की हम बात कर रहे थे. बहुत से इदारे ऐसे हैं जो बड़े कामयाब हैं. सिर्फ ये चाहूँगा कि हम पॉजिटिविटी को अपनाएं मैक्सिमम. हाँ, जो शिकायत हैं, जो हालात हैं, उनमें बेहद बुराइयां भी हैं. मैं ऐसा नहीं कहता कि हम कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे के वी डूइंग ग्रेट, वी जस्ट ट्राइंग एंड वी आर पार्ट ऑफ इट. हम सबको कोशिश करनी चाहिए. तनकीद भी कीजिए, अपनी राय भी दीजिए, लेकिन पॉजिटिविटी अपनाइए बहुत ज़्यादा. बताइए कि PSL का रोड शो आ रहा है लंदन में, ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हैं. आप क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको क्या फीलिंग्स है आपकी? ऑफ कोर्स आई विश देम ऑल द लक. आई जस्ट फील दैट हमारी टीम को मज़ीद हार्ड वर्क करना चाहिए. हमारे लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की टीम पे होती है, तो वी शुड वर्क हार्ड. और PSL में मज़ीद टीमें भी ऐड हो सकती हैं. ऑफ कोर्स, जी भाई, उस पर पूरा कर लें. PSL में जो मज़ीद टीमें, उसके ऊपर भी आप खुश? जी आई विश देम ऑल द लक. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, पूरी दुनिया का बच्चा देखता है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी टीम तो हमेशा से बहुत नाम रहा है. एंड आई जस्ट विश कि अभी भी इनका काम इसी तरह हो. थैंक यू. जी, ये तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त लाहौर की सड़कें, लाहौर का पूरा सब कुछ जो काम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हुआ है. कराची में उस तरह से काम नहीं हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि होगा. देखिए, किसी को पुट डाउन करने की ना हमारी नीयत होनी चाहिए, ना हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे से कंपैरिजन कराएं, मुकाबला कराएं. कराची भी पाकिस्तान का शहर है, लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा है,
اور جہاں پہ جو اچھائی ہے اس کو اجاگر کرنی چاہیے اور جہاں پہ جو برائی ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے تاکہ بہتری کس طرح ہو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آج ہم نے ویری بریفلی اس ایونٹ کو کور کیا پاکستان ریمیٹنس سمٹ جو لنڈن میں ہو رہی ہے اور اس میں احسان خان موجود تھے, مہوش یاد موجود تھی. اس طرح کے ایکسکلوسیو کنٹینٹ کے لیے ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ فالو بام. Bam! A big shout out to Bam. Bam! A big shout out to Bam. Bam! A big shout out to Bam. Keep watching. No. اللہ حافظ. You are watching BAM TV.